Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss MCQs for employability skills, that is part A for class 12th IT students. Even the same MCQs can be used by other skill education subjects like employability skill जो है सारे skill सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, सेम बुक है, सेम यूनिट्स कवर हो रही है टर्म वन में. तो अगर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सब्जेक्ट या फिर मल्टीमीडिया है, कोई भी स्किल्ड सब्जेक्ट है, स्किल्ड एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है, देन यू कैन use these MCQs for employability skills. And at the end of the video I will also tell you कि आप और ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs की तो आप कहाँ से कर सकते हैं. So let's start solving the MCQs. What does respect stand for in active listening? तो respect का क्या full form है in concept of this active listening? We will see the options. First option is R stands for remove, E is for eye contact, S is for show, P is for pay, and E is for empathize, C is for clarify doubts, T is for tune. So actually this option A is the correct option here. सो यहाँ पे अगर आपने बुक पढ़ी होगी आईटी की तो हर एक वर्ड की मीनिंग है. लाइक रिमूव मीन्स वी हैव टू रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फॉर एक्टिव लिसनिंग. ऐसे ही बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग है. सो यू शुड स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम आईटी बुक. Now next MCQ, which of the following is not the stage of active listening? So if you will see all the stages, receiving is a stage, understanding is also a stage, remembering is also a stage of active listening, but reverting is not a stage. So option D is the correct option. Now question number 3, which of the following is a barrier to active listening? So being preoccupied, yes, it is a barrier. Past experiences, it is also a barrier. Noise and visual distraction is also a barrier to active listening. It means कि हमें active listening में problem होगी. Then all of the above is the correct answer for this. Now question 4, which of the following step should be followed to teach interview skills in high school? So if someone wants to teach interview skills in high school, then which of the following can be followed? First is interview skills should be introduced. Talk about the why good interview skills matter. एक्सप्लोर व्हाट गुड जॉब इंटरव्यू स्किल्स लुक लाइक. तो ये तीनों ही जो स्टेप्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए फॉर टीचिंग इंटरव्यू स्किल इन हाई स्कूल. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन 5, सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it increases individual's energy and activity. It directs an individual towards a specific goal. So both the options are correct. Now third, it results in initiation and persistence of specific activities. Persistence means आप continuously किसी work को कर रहे हैं, regularly कर रहे हैं, that is persistence. So all the options are correct. So option D is the correct option. Now question number 6, which of the following is not a personality disorder? सो बॉर्डर लाइन इज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पहले वाली वीडियो में भी आई हैव टोल्ड यू कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस यूनिट. नेक्स्ट दिस स्किजॉइड, दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अवॉइडेंट इज़ ऑल्सो अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बट ये सोशल जो है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर सोशल से रिलेटेड कुछ है तो वो है एंटी सोशल. तो अगर यहाँ पे एंटी सोशल लिखा होता तो ये भी आपका क्या होता, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता. बट यहाँ पे सोशल लिखा है, सो दिस इज़ नॉट द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो हेयर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैश डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप्स. मीन्स लोगों से मिलना जुलना लोगों को पसंद नहीं होता है ऐसे डिसऑर्डर वाले लोगों को. एंड पीपल टेंड टू बी डिस्टेंट, डिटैच्ड एंड इनडिफरेंट. तो लोगों से दूर रहते हैं. सो विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज इट? इट इज़ schizoid. Now next one, dash personality disorder is a condition marked by an over reliance on other people to meet one's emotional and physical need. तो अगर आपको इमोशनल या फिजिकल नीड है, किसी से भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो? ओवर रिलायंस, दूसरों के ऊपर ओवर डिपेंड हो जाते हो. सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज इट? इट इज़ डिपेंडेंट. नाउ नेक्स्ट इज Dash personality order is characterized by feeling of extreme social inhibition
inadequacy and sensitivity to negative criticism and rejection. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशली आपको जो है लोग अलग कर दे रहे हैं, आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो आप उसको बहुत ही सेंसिटिव होके ले रहे हैं, देन इस टाइप की हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, दैट इज़ अवॉइडेंट. नाउ नेक्स्ट वन, calc has dash rows and dash columns, so we should know that how many rows and columns are in calc. It is 1048576. This is the number of rows and these are columns. तो वैसे भी कॉलम जो होते हैं वो इन कंपैरिजन टू रोज़ वो लेस हैं, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसको रोज़ समझते हैं और इसको नंबर ऑफ कॉलम समझते हैं. सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको लर्न होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स. तो आपको सारे सेल्स जो हैं रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करने हैं, लाइक A1, देन B1, देन A2, B2. तो अगर आपको ऐसे रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करने हैं तो आपको कौन सी की प्रेस करनी होती है, वी यूज शिफ्ट की फॉर दैट. सो हियर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू फिल्टर द डेटा. तो अगर हमें वर्कशीट में डेटा फिल्टर करना है, then we can use auto filter as well as standard filter. So here option both A and B is the correct option. Now question number 13, which error is displayed when column is not wide enough to display the value in calc. तो अगर आपके कॉलम की विड्थ इतनी नहीं है कि आपका डेटा जो भी लिखा है वो कम्प्लीटली डिस्प्ले हो जाए वहाँ पे, देन दिस एरर इज डिस्प्लेड, दैट इज हैश 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 हैश. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, what will be displayed if the following formula is entered in a cell A1 in a spreadsheet application. So this is the formula. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि exponentiation operator is solved. So exponentiation means 3 to the power 2, that will be 9, and then 3 will be added to it, so answer is 12. So 12 will be the correct option. Now next question, which of the following personality trait fall in the big 5 popular personality classification. So this option A, sociable, is correct option. Dependable is also correct personality trait. Creative is also the correct option. So here correct option is option D, that is all of the above. क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग. यहाँ पे नॉट अ बैरियर आ गया है. सो ये बैरियर है, अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, ये भी एक बैरियर है. बीइंग अटेंटिव, इट इज़ नॉट अ बैरियर. सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन यूज टू परफॉर्म एडिशन इन स्प्रेडशीट. तो अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना होता है, देन व्हाट वी कैन यूज़ फार्मूला, चार्ट, ग्राफ, फॉर्मेट ऑप्शन, ये तो यूज़ नहीं होता है एडिशन के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, MINTS रेफर्स टू. तो MINTS जो है किसको रेफर करता है, इट मीन्स कैपिटलाइजेशन रूल्स. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, pressing dash key opens the start menu. So which key you should press for opening start menu, that is Windows key. So option A is the correct option. Which of the following factors does not improve active listening. तो एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या कौन सा फैक्टर है जो कि नहीं इम्प्रूव करता है, बीइंग प्री ऑक्यूपाइड. तो अगर आप पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं, किसी और चीज़ में आपका फोकस है, देन यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर एक्टिव लिसनिंग. नाउ 21, displays the name of the workbook on which you are currently working. So formula bar, menu bar, format bar, title bar. तो title bar हमारी workbook का name display करता है. Which of the following is not a source of inspiration, और motivation भी हो सकता था यहाँ पे, books, music, gossips, biography. So obviously ये बहुत easy MCQ है, that is gossip. Answer is gossip. Now 23, spreadsheet programs have become very popular not because of which of the following features. तो किस फीचर के वजह से नहीं पॉपुलर हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस मेक कैलकुलेशन ईजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है. लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ईजिली हैंडल्ड एंड मैनिपुलेटेड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है. डेटा कैन बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फॉर्मूला आर नॉट कैलकुलेटिव. Next option, formulae are not
automatically recalculated when underlying data values are changed. So this is not a advantage. So option D is the correct option, क्योंकि इसकी वजह से पॉपुलर थोड़ी होगा. Now question number 24. Which of the following shortcut keys is used to select entire worksheet? तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, लाइक दिस वन, Ctrl+A जो होता है वो एंटायर वर्कशीट को आपका सिलेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मूला इन कैल्क ऑलवेज स्टार्ट्स विद. सो वी नो दैट फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन. सो इतने MCQ हमारे लिए आई थिंक इनफ है आज के लिए. नाउ इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर MCQs, तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई एम गोइंग टू शो यू दैट. You just open website of CBSE, that is CBSE Academics. So this is the home page of that website. Go to skill education option, then go to sample papers, then go to this class 12th term 1. So you will find all these sample papers. तो इन सब में जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक दीज आर 41 सब्जेक्ट्स. तो इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं सेम है, सेम यूनिट्स हैं. तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी क्या होंगे, सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक यू कैन सी, ये IT में भी यही यूनिट्स हैं आपकी. सो यू कैन ओपन ईच एंड एवरी सैम्पल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम हेयर. आप किसी भी सब्जेक्ट के हों तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे सैम्पल पेपर्स में जो भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन हैं, जो सेक्शन A के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो बाय डूइंग दिस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स MCQ. क्योंकि अगर ये 41 क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर ये 41 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप इनमें से अगर 6 क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर में होंगे तो आप सोच सकते हैं कि 41 × 6 आपका कितना हो जाएगा. दैट विल बी 246, राइट. सो 246 आपके क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर हो जाएंगे. सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप इसमें MCQs आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन यू कैन गो एंड ओपन एवरी सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व MCQs ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सो दिस मच इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन द प्रिपरेशन ऑफ पार्ट A, दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सेक्शन A में आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे. सो आई होप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप इजीली उन 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम, देन प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है. ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म 1 एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.